100 سالہ عرس شریف کے ضمن میں ہم تمام یہاں جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بعد محفل لنگر سے پہلے نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی اور بعد نماز عشاء کھانے کا انتظام رہے گا۔ تو میرے دوستو، دنیا میں سب سے بڑی سچائی یہ ہے کہ اس زمین پر اولیاء کرام نے اسلام کی اتنی بڑی بڑی خدمتیں کی ہیں کہ ان بزرگ اولیاء اللہ کے سامنے ان کے مشن اور ان کی کوششوں اور ان کے کاموں کو روکنے کے لیے دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں سامنے آئیں۔ آپ تاریخ ولایت پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے کہ آج اولیاء کرام کی مزاریں باقی ہے اور کسی نے کسی صاحب مزار ولی کو نہیں دیکھا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین پر آپ جائیں گے تو آپ کو کہیں 800 سال پرانی مزار ملے گی، تو کوئی 500 سال پرانی مزار ملے گی، کوئی 600 سال پرانی مزار ملے گی، مگر آپ وہاں پر دیکھیں گے تو عوام کا ایسا بے انتہا ہجوم رہے گا اور اس مزار سے لوگوں کا ایسا قلبی لگاؤ رہے گا اور عقیدت مند کی اولیاء اللہ کے بارگاہوں میں ایسی عقیدت رہے گی کہ دیکھنے والا اور سمجھنے والا اس چیز کو سمجھ سکتا ہے کہ بارگاہوں پر انسان اتنی عقیدت اور اتنی محبت سے ٹھہرتا ہے کہ دیکھنے پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ وہ ولی کو پہلے سے ہی جانتا ہے اور اس ولی کو وہ دیکھ رہا ہے۔ تو اولیاء اللہ کی بارگاہوں میں بلا مذہب کے اختلاف کے، کیا ہندو، کیا مسلمان، کیا سکھ، کیا عیسائی، آپ ولیوں کے بارگاہ میں جائیں گے تو ہر مذہب وہاں نظر آئے گا اور ہر قسم کی عقیدت وہاں نظر آئے گی۔ اور ولیوں کی بارگاہ میں روز اول سے لے کر آج تک انسان عقیدت پر نوازا گیا ہے، محبت پر نوازا گیا ہے، اور قیامت قائم ہونے تک اللہ کی بارگاہیں آباد رہیں گی اور اولیاء اللہ کی بارگاہوں سے اور ان کے فیض سے لوگ مستفیض ہوتے رہیں گے۔ اور ایک بات یاد رکھیے میرے دوستو، آج ہم سرکار سیدنا سید مردان علی شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی کئی بڑے بڑے بزرگ ترر کے علاقے میں گزر چکے ہیں، اور ہر ایک کی بارگاہیں زائرین سے بھرے ہوئے ہیں، معتقدین سے بھرے ہوئے ہیں، چاہنے والوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو ولیوں کی بارگاہ میں جانے کے بعد ہمیں ایک تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ تھے کیسے اور ہے کیا۔ تو شریعت اسلامیہ میں جب آپ ولیوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ولیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، تو سب سے پہلی چیز آپ کو اولیاء اللہ کے بارے میں یہ ملے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں پہچان کے لیے ہر ایک کی شناخت کو اللہ نے رکھا ہے، اور اس کی شناخت کے ذریعے انسان اس چیز کو پہچانتا ہے، اس کی صفت کے ذریعے انسان اس چیز کو پہچانتا ہے۔ مگر میرے دوستو، قابل غور بات یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہر چیز کی شناخت رکھی، ہر چیز کی پہچان رکھی، ہر چیز کی صفت رکھی، ہر چیز کی خصوصیت رکھی،
تو اس کی صفت اور خصوصیت کو دیکھ کر انسان سمجھ جاتا ہے یہ وہ چیز ہے، مگر آپ کو سن کر بڑا تعجب ہوگا کہ اس دنیا میں ولایت ایک ایسی چیز ہے جس کی اللہ نے کوئی شناخت نہیں رکھی، کسی قسم کی کوئی شناخت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کی نہیں رکھی۔ اگر شریعت میں ولایت کی شناخت مقرر کی جاتی، اگر شریعت میں ولیوں کے پہچان کی چیزیں مقرر کی جاتی، تو آج آدمی ان شناختوں کو، اس دکھاوے کو اپنے اوپر اپنا کر گھر گھر ولی ہونے کا دعویٰ کرنا، اور ہر گھر میں ایک ولی نظر آتا۔ تو ولیوں کی کوئی پہچان شریعت مقررہ میں مقرر نہیں ہے، بلکہ یہ اولیاء اللہ دل والے ہوتے ہیں، دل کی دنیا کو آباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ نہ ان کی زبان کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ ان کے سننے کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ ان کے دینے کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ ان کی زندگی کو کوئی سمجھ سکتا ہے، نہ ان کے اٹھنے اور بیٹھنے کو کوئی سمجھ سکتا ہے۔ ہر دور میں، ہر وقت، ہر زمانہ اور ہر سال اور ہر صدی میں دنیا کے لیے اولیاء کی زندگی بہت بڑی چیلنج رہی ہے، اور آج بھی اولیاء کرام کی زندگی پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے۔ ذرا دیکھیے کہ دنیا میں کتنے قسم کے ولی آئے، کتنے قسم کے ولی آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت میں ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا۔ آقا فرماتے ہیں میری امت میں ایک جماعت ہوگی، ایک گروہ ہوگا، اور وہ جماعت کیسی ہوگی، وہ گروہ کیسا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی حالت ایسی ہوگی کہ سر میں ان کے کچرا ہوگا، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں گے، جسم میلا ہوگا، اور دیکھنے والا انہیں دیوانہ سمجھے گا۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت اتنی گندی اور اتنی بری رہے گی کہ اگر وہ تمہاری چوکھٹ کے سامنے آ کر ٹھہرے تو تم حقارت سے انہیں اپنی چوکھٹ سے نکال دو۔ اتنی بری حالت میں رہیں گے کہ کپڑے پھٹے رہیں گے، جسم میلا رہے گا، سر میں کچرا رہے گا، اور دیکھنے والا انہیں دیوانہ سمجھے گا۔ مگر رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اسی دیوانے کی زبان میں اتنی تاثیر رہے گی کہ ادھر زبان ہلے گی، ادھر اللہ ہلے گا۔ اس دیوانے میں اتنی تاثیر رہے گی کہ ادھر زبان ہلے گی اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو ولی زبان والا ہوگا۔ اللہ کی راہ میں ایک ولی اپنی ہر چیز کو قربان کر دیتا ہے۔ ولایت کی منزل یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، آسانی سے کوئی انسان ولایت کی منزل تک نہیں پہنچتا، بلکہ ولایت کی جو منزل ہوتی ہے بڑی خطرناک ہوتی ہے، بڑی خطرناک یہ منزل ولایت کی ہوتی ہے۔ آپ کو جان کر حیران ہوگا کہ اپنی نفس کی قربانیاں دینے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی 118 سال کی زندگی میں سے 80 سال آپ نے اپنی زندگی میں کو قربانیوں میں گزارا۔ 80 سال سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کو اللہ کی راہ میں ایسے لگایا کہ 118 سالہ زندگی سرکار مردان علی شاہ کی، ان 80 سالہ زندگی کو آپ پڑھیں گے تو بڑا حیران ہو جائیں گے کہ ایک انسان نیم کے پتے کھا کر کیسے زندہ رہتا تھا، ایک انسان پہاڑوں میں سو کر کیسے زندگی گزارتا تھا، ایک انسان جھاڑوں کے نیچے بیٹھ کر کیسے زندگی گزارتا تھا، اور ایک انسان درندوں، پرندوں، سانپوں اور زہریلے جانوروں کے بیچ میں رہ کر ایک انسان کیسے زندگی گزارتا تھا۔ حضرت سیدنا مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی حقیقت میں ایک معمہ ہے، آپ کی زندگی حقیقت میں بڑا راز ہے۔ آپ ان کی سیرت کو پڑھیں گے، ان کی سیرت کی کتاب کو آپ پڑھیں گے تو بڑے حیران ہو جائیں گے کہ 118 سالہ زندگی میں سے 80 سال کی عمر تک ایک انسان نفس کشی کی ایسی منزلوں کو گزارا
کہ آپ کے پیٹ میں سوائے پتوں کے عرق کے علاوہ کوئی چیز نہیں اترتی تھی، کوئی چیز نہیں اترتی تھی۔ اور پھر دیکھیے کہ سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی روزے رسول کی حاضری کا جب آپ منظر پڑھیں گے، سرکار غریب نواز کے در کی حاضری کا جب آپ منظر پڑھیں گے، وقت کے نظام میر عثمان علی خان بہادر جیسے بادشاہ وقت سلطان دکن جب سرکار مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کے لیے، آپ سے ملاقات کے لیے ان کا انتظار کرنا آپ پڑھیں گے تو بڑا حیران ہو جائیں گے آپ کہ یہ کیسی ولایت تھی، یہ کیسی ولایت تھی۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس علاقے شاہ صاحب بٹا میں حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولایت کے چرچے اتنے بڑھتے گئے، اتنے بڑھتے گئے، اتنے بڑھتے گئے کہ بادشاہ وقت نظام حیدرآباد کو اپنا دربار چھوڑ کر حضرت کے دیدار کے لیے آنا پڑا۔ اور تاریخ بڑی مشہور ہے کہ اعلیٰ حضرت میر عثمان علی خان بہادر نے حضرت مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے دیدار کے لیے 7 دن کا انتظار کیا۔ آن ریکارڈ حالات دیکھیا کہ 7 دن کا انتظار کیا۔ اور آپ کا مقام کیا ہے؟ یہ شاہ صاحب بٹا جب جنگل تھا، اس جنگل میں آپ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر بادشاہ وقت انتظار میں ٹھہرا ہوا ہے۔ جیسے صبح ہوتی بادشاہ کا آدمی آتا اور گزارش کرتا کہ حضرت ملنا چاہتے ہیں، حضرت ملنا چاہتے ہیں، حضرت ملنا چاہتے ہیں۔ تو ایک بات سنو کہ آپ مردان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پڑھیے، انشاءاللہ کل وہ کتاب لانچ ہونے والی ہے، اس کتاب کو پڑھی، بڑی حیرت ہوگی آپ کی زندگی کو۔ تو ذرا دیکھیے میرے دوستو کہ بڑا عجیب واقعہ کہ آپ ہفتے میں صرف 1 دن بات کرتے تھے اور 6 دن آپ خاموش، اور 6 دن اشاروں پہ ہی گفتگو، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں، صرف اشاروں سے۔ کوئی آتا سلام کرتا، اشارے پہ جواب، کوئی آتا تکلیف سناتا، اشاروں پہ جواب، مگر صرف ہفتے میں 1 دن، 1 دن۔ تو دکن کے بادشاہ نے 6 دن کا انتظار کیا اپنے شاہی محل کو چھوڑ کر محبوب نگر میں کہ جس دن آپ بات کر رہے ہیں اس دن میں اپنا پیغام پہنچاؤں گا۔ حضور صاحب سجادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت سید عبدالرزاق شاہ قادری مدد العالی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ کرسی والے حلقہ سلطانیہ ہونے کے بعد انہوں نیچے بیٹھتے، صاحب نارمل کرسی بیٹھا، حلقہ نیچے ہوتا، آؤ حلقہ نیچے ہوتا۔ پلاسٹک کے کرسیاں لے لو بادشاہ، وہ کرسیاں لے لو 2-3۔ نہیں یہ نہیں، بڑی کرسی نہیں، صاحب کو بھی نارمل کرسی۔ اس کے بعد وہ ہلکا جیسا ہی وہ محفل شروع ہوتی کرسیاں ہٹا دیتے، ایک ہی کرسی صاحب۔
चलिए दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद वसल्लम। तो मैं क्या कह रहा था कि बादशाह दक्कन, सुल्तान दक्कन मीर उस्मान अली खान बहादुर खियाम किए महबूब नगर में सिर्फ हजरत से गुफ्तगू करने के लिए, और वो खियाम मुकम्मिल एक हफ्ते का रहा और एक हफ्ते तक पैगाम आते रहा कि बादशाह मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं बादशाह, मगर जवाब नहीं, हरगिज जवाब नहीं। तो जवाब की वजह क्या थी? इसलिए कि बात सब में मशहूर थी कि हजरत सिर्फ हफ्ते में एक दिन बात करते हैं। तो वो उस दिन का बादशाह वक्त ने इंतजार किया, और हजरत हफ्ते में एक दिन जो बात करते थे ना, वो दिन आ गया। अब वो दिन आने के बाद हुआ क्या? बादशाह का कासिद हजरत के पास आया और हजरत से आकर कहने लगा कि हुजूर, बादशाह है, वक्त आ चुके हैं और 1 महीने से आपसे मुलाकात के इंतजार में है। अगर आप इजाजत दे दें तो बादशाह आपसे आकर मिलेंगे। तो जरा गौर कीजिए मेरे दोस्तों, उस दौर के निजामों के दरबार को गौर कीजिए और हजरत मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की जंगल की बादशाहत को गौर कीजिए। उस दौर के आसिफ जाही हुकूमत के ताज और तख्त को तस्वुर में लाइए और हजरत मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के पत्थर के तख्त को नजर में लाइए कि हजरत मर्दान अली शाह, सैयद मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह अपने पत्थर के तख्त पे बैठकर बादशाह के कासिद को सुन रहे हैं, और कासिद कह रहा है कि आला हजरत, हुजूर, निजाम इंतजार में है आपकी, अगर आप इजाजत दें तो मैं बुला लूं। तो सरकार मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते हैं कि मियां, वो इंसानों के बादशाह हैं और मैं जंगल का बादशाह हूं। दोनों की सल्तनतें अलग अलग है, दोनों को एक दूसरे से क्या काम? मेरी बादशाहत तो जंगलों में है, उनकी बादशाहत आबादियों में है, इंसानों में है। तो जंगल के बादशाह को आबादियों के बादशाह से क्या काम? उन्हें पैगाम पहुंचा दो कि जंगल का बादशाह इंसानों के बादशाहों से मुलाकात नहीं करेगा। तो ऐसी अजीम शान हजरत मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह की। और फिर देखिए कि औलिया अल्लाह इस दुनिया में लोग कैसी कैसी हस्तियां विलायत को लेकर आए हैं, कैसी कैसी हस्तियां। कि बगदाद की इराक की सरजमीन है, इराक की सरजमीन पर दरियाए दजला के किनारे एक मजजूब बैठे हुए हैं और आंख उनके बंद है, अल्लाह का जिक्र चल रहा है और हालत बड़ी बुरी है उनकी। आंख बंद है, अल्लाह की लौ में वो मजजूब लगे हुए हैं। तो उनके सामने से एक मंचला गया और वो मंचला बड़े गौर से उन्हें देखने लगा, और वो बंदा खुदा के वजूद का मुनकिर था। खुदा के वजूद को वो मानता ही नहीं था, बल्कि वो खुदा के वजूद का मुनकिर था। सामने ठहरा और वक्त के मजजूब को खलल पैदा किया जिक्र में, आवाज को बड़ी किया। तो हजरत ने अपनी आंख को खोला तो ये मनचला नौजवान, ये पढ़ा लिखा नौजवान कि इतना पढ़ा कि उसकी काबिलियत ने खुदा के वजूद का इनकार कर दिया, और गुरूर और तकब्बुर में उस मजजूब से पूछा, क्या कर रहे हो, किसको याद कर रहे हो? तो हजरत ने कहा कि मियां, मैं मेरे खुदा को याद कर रहा हूं, मेरे अल्लाह को मैं याद कर रहा हूं, मैं मेरे अल्लाह के साथ लगा हुआ हूं, मैं मेरे रब का जिक्र कर रहा हूं, मैं मेरे रब के जिक्र में मसरूफ हूं। तो उसने कहा कि बाबा ये बताइए, क्या अल्लाह है? क्या अल्लाह है? हजरत ने कहा क्यों नहीं है। तो पूछा, जब है तो दिखता क्यों नहीं? जब है तो दिखता क्यों नहीं? हजरत ने पूछा, मियां मतलब क्या है, क्या बोलना चाहते हो? तो उसने कहा कि देखो हजरत, जो चीज है वो नजर आती है और होने का सबूत यही है कि नजर आए, और जो चीज नजर ना आए उसका यकीन नहीं होता, है कि नहीं है कि। तो बोला, हजरत बोले तफसील से बोल। तो बोला, देखो हजरत, झाड़ है बोलते दिखता, जमीन है बोलते दिखती, आसमान है बोलते दिखता, चांद सूरज सितारे है बोलते दिखता, हवा है बोलते दिखती नहीं मगर महसूस होती।
दिखती नहीं मगर महसूस होती। तो जितनी चीजें है बोल रहे, या तो उसका एहसास हो रहा है, या तो वो जिस्म पे वजन और भारी गुजर रहे हैं, या तो नजर आ रहे हैं, मगर ये अल्लाह है बोलते तो दिखता नहीं। अगर होता तो दिखेगा ना। तुम लोगों का तसव्वुर गलत है, अल्लाह है ही नहीं, हर चीज अपनी कुदरत से खुद ब खुद होती आ रही है। हजरत ने पूछा कहना क्या चाहता है, तो कहा कि देखो मेरे 3 सवाल हैं अल्लाह के ताल्लुक से, और वो 3 सवाल ऐसे हैं कि बड़े बड़ों ने उसका जवाब नहीं दिया तो मैं फिक्स हो गया कि अल्लाह नहीं है और तुम भी नहीं दे सकते। हजरत ने बोला बोल मियां क्या है, मैं दूंगा। कहा कि तुम दोगे, एक फकीर एक दीवाना, जो बड़े बड़ों से नहीं हो सका, एक दीवाना फकीर क्या देगा। तो बोला क्या है, तो कहा कि मेरा पहला सवाल तो हो गया, अगर है तो दिख रहा कहीं क्यों नहीं, जो चीज है वो दिखती, तो अल्लाह दिख रहा कहीं क्यों नहीं। बोले हजरत अच्छा ये बात है। बोले तेरा दूसरा सवाल, तो बोले ये बोलो शैतान का हशर क्या होता। सवाल किया हजरत से, शैतान का हशर क्या होता। बोले शैतान का हशर, एक दिन सूर फूका जाता, क़यामत आती, दुनिया खत्म हो जाती, जन्नत और जहन्नुमी का फैसला होता, और शैतान भी जहन्नुमी ही रहता, और अल्लाह ताला उसे जहन्नुम ही में जलाएगा। तो हंसा, बोला यही तो फॉल्ट है, यही तो प्रॉब्लम है। हजरत को बोला क्या प्रॉब्लम, तो बोला हजरत ये बताओ शैतान बना किससे। हजरत बोले आग से। जहन्नुम है या? हजरत बोले आग। तो इस तरह से बोला एक आंच दूसरे आंच को जलाती, एक आंच दूसरे आंच को जलाती क्या, और अंदर जाके जलता क्या, बड़े मजे से रहता, इन भी आग उन भी आग, उसको क्या तकलीफ होती। ये भी तसव्वुर तुम्हारा गलत है कि शैतान जलता। हजरत बोले अच्छा तीसरा बोल। तो बोले तीसरा सवाल ये है कि आप लोग अपनी खानकाहों में, अपनी दरगाहों में लोगों को नसीहत करते कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती, अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई चीज नहीं होती। तो जब चोर चोरी करता है तो उसमें भी अल्लाह की मर्जी होती है, तो फिर जुर्म पे सजा कहीं को रखे, दुनिया में जुर्म पे सजा कहीं को रखे, छोड़ देना था अल्लाह की मर्जी बोल के। तब हजरत पहले ही मजजूब, बड़ा गुस्सा आया। बोले हो गया आप पूछे। बोले हाँ हो गया, आप जवाब दो। बोले ठहर जवाब देता हूं। अब जवाब कितना प्यारा मिला देखो, उधर देखे इधर देखे, सामने ईंट का ढेला पड़ा हुआ था, वो ईंट का ढेला उठाए सीधा ऐसा मारे कि पेशानी फूट गई। अब जैसा ही पेशानी फूट गई, अब कितना उठा होगा जरा सोचो, पेशानी फूटी तो औटा कितना होगा, इतना औटा कि सीधा जाके हजरत पे केस बुक कर दिया। इराक के बगदाद के उस जमाने के पीएस को गया, हजरत पे केस बुक कर दिया, हजरत गिरफ्तार हो गए। एक इंसान पे कत्ल का कातिलाना हमला किए बोल के हजरत पे केस बुक हो गया, मजदूर साहब गिरफ्तार हो गए। अब गिरफ्तार होने के बाद वो अदालतें थी जो फैसले फटाफट हो जाते थे, एक ही दिन में मसला खत्म हो जाता था। अदालत लग गई, जख्मी ठहरा हुआ है, मारने वाला भी ठहरा हुआ है, जज भी बैठा हुआ है, वक्त का काजी। मुकदमा शुरू हुआ कि इस बुजुर्ग ने एक नौजवान को नाहक के मार दिया, कातिलाना हमला कर दिए, इनको सजा होना चाहिए। तो पूछा आप तो बुजुर्ग हैं, आपकी बुजुर्गी और शराफत के चर्चे तो आम है, आप तो अपनी दुनिया में मगन होते हैं, ये कब से लोगों पे हमला करना शुरू कर दिए। तो हजरत बोले कि जज साहब मैं ना इसको मारा, ना मैं इस पे कातिलाना हमला किया, ना मेरी इसकी दुश्मनी है, बल्कि मैं 3 सवालों का जवाब इसको एक ईंट से दिया। इन मेरे को सवाल करा तो जवाब ही जैसा था कि उसका सर फोड़ना जरूरी था। अगर मैं इसका सर नहीं फोड़ा तो इसको जवाब समझ में नहीं आता था, तो जवाब देने के लिए सर फोड़ना पड़ा। तो सारा दरबार हैरान कि जब सवाल तो जुबान से हुआ मगर जवाब ईंट से मिला, ये क्या जवाब है जिसमें सर फोड़ा गया। तो हजरत बोले आप ठहरिए, अब इसको दरबार में सवाल पूछो, बोलो मैं जवाब देता हूं, पूछता हूं। और एक बार सर फूटा, हिम्मत दी उसको, बोले मियां तू दरबार में अब कैसा सर फूटता बोलो। तो फौरन बोला मेरा पहला सवाल ये था कि अल्लाह है तो दिखता क्यों नहीं। अब जज साहब बोले आप जवाब दो। हजरत बोले मियां देख,
तू मेरे को 3 सवाल करा तो मैं तेरे क्या करा? बोले क्या करे हजरत, इतना बड़ा ईंट का ढेला लेके सिर फोड़ दिए। बोले फिर तू उसके बाद क्या करा? तो बोले क्या भी नहीं करा, केस बुक करा। कैको केस बुक करा मेरे ऊपर? बोले तकलीफ हुई। कैको तकलीफ हुई? बोले इतना बड़ा गला पड़ गया कि दर्द से मैं तड़प गया, इतना दर्द कि अब तक वो दर्द हो रहा। मेरे दर्द का बदला लेने के लिए मैं यहाँ आया हूं। तो हजरत बोले अच्छा, आप दर्द का बदला लेने आए, आप दर्द से तड़प रहे? तो हजरत बोले ठीक है बाबा, का बता तेरा दर्द आखिर का है, मैं भी तो देखूं तेरा दर्द लाल है, पीला है, हरा है, मोटा है, दुबला है, 1 इंच है, 1 फीट है, आखिर तेरा दर्द तू तो बहुत थोड़ा होगा, मगर मैं तो देखूं कि तेरा दर्द दुबला है, पतला है, काला है, पीला है, आखिर है क्या दर्द बता, आखिर तेरा दर्द बैठा कहाँ है और कहां से वो तुझे एहसास दिला रहा है? तो फौरन बोला चीचा पागल है वे क्या, दर्द दिखता नहीं महसूस होता। क्या बोला हजरत, सरक गए क्या? दर्द दिखता नहीं महसूस होता और वो एक दर्द से पूरा जिस्म तड़पता। तो ऐसे ही हजरत बोले बाबा खुदा का मामला भी वैसा ही है जैसे तेरे जख्म का दर्द, खुदा का मामला भी वैसा ही है जैसे तेरे जख्म का दर्द। तेरा दर्द तेरी जान से जितना करीब है उतना से उससे भी ज्यादा करीब तेरा खुदा है, उससे भी ज्यादा करीब तेरा खुदा है। तो हर चीज जब होती है तो दिखना जरूरी नहीं है, मगर रब है तो जैसे तेरे जख्म के दर्द का एहसास तेरे दिल पे है वैसे ही रब का एहसास और रब की कुदरत की झलकियां पूरे तेरे जिस्म में है। मगर जैसे तू जख्म को नहीं देख सकता वैसे ही तेरी आंख रब को देख नहीं सकती, वैसे ही रब को देख नहीं सकती। अगर रब हर एक को नजर आने वाला होता तो इंसान बीमार होने से पहले अपनी बीमारी की शक्ल को देख लिया होता, बीमारी की शक्ल को देख लिया होता, उसके गम को देख लिया होता। तो फिर जरा देखिए मेरे दोस्तों, थोड़ा देखिए कि हुआ क्या। ये तो रब के मामला है कि तेरे दर्द के जैसा तू रब को समझ कि तुझमें दर्द है मगर दिख रहा नहीं, मगर एहसास है और उस दर्द का असर पूरे जिस्म पे है। वैसे ही कुदरत की कुदरत है कि तुझे नजर नहीं आती मगर तू चल तो उसकी कुदरत से रहा है, वो है और उसकी कुदरत तुझे चला रही है। अगर बोले तेरा दूसरा सवाल क्या है? बोले दूसरा सवाल ये है कि शैतान आग से बना आप लोग बोलते हैं और आखिर में उसको फेंकना जहन्नुम में से, तो एक आंच दूसरे आंच को कैसा जलाती जी? उन भी आंच है, जहन्नुम में भी आंच है, तो एक आंच दूसरे आंच में जलाए तो जलता। तो हजरत बोले बाबा आप किससे बने? आदम को अल्लाह किससे बनाया? इंसान की असलियत क्या है, इंसान की हकीकत क्या है और इंसान किस चीज का पुतला है और इंसान को अल्लाह ने किस चीज से बनाया है? तो बोला मिट्टी से बनाया। बोला तू किससे बना? मिट्टी से। तेरा बाप मिट्टी से, तेरा खानदान मिट्टी से, उससे पहले मिट्टी से, आदम तक मिट्टी से, खुद आदम मिट्टी, तो तू मिट्टी, मैं मिट्टी और ये ईंट का डेला भी मिट्टी। तू मिट्टी, मैं मिट्टी और ये ईंट का ढेला भी मिट्टी। तो जब दुनिया में एक मिट्टी का ढेला दूसरी मिट्टी का सिर फोड़ के खून निकाल सकता है तो जहन्नुम में एक आग दूसरे आग को कैसा नहीं जला सकती? जहन्नुम में एक आग दूसरे आग को कैसे नहीं जला सकती? तो ये भी तो खुदा की कुदरत है, समझ उसे, खुदा की कुदरत है समझ। तो बोला तीसरा सवाल, बोले तीसरा सवाल ये है हजरत कि हर चीज अल्लाह की मर्जी से होती बोलते आप लोग, फिर जुर्मों की सजा कहीं को रखे? अल्लाह की मर्जी बोल के छोड़ देना। अरे भाई पाशा, अरे उद्दाम को रोको यार। तो जरा देखो, ज्यादा ऊद डाले तो अंगार ठंडा हो जाता। आजकल ऊदा भी ओरिजिनल नहीं आ रहे भाई। पहले जमाने में ऊद गर्म करता था महफिल को, आज के जमाने के ऊद ठंडा कर रहा।
तो जरा देखो कि हजरत बोले कि पाशा सवाल क्या है तेरा तीसरा? बोले तीसरा सवाल यही है कि हर चीज जब अल्लाह की मर्जी से होती तो जुर्मों की सजा कई को, जेल कई को, जज कई को, कैद खाने कई को, अल्लाह की मर्जी बोल के यकीन करके छोड़ना। तो हजरत बोले पाशा मैं जो तेरे को मारा था ना वो भी अल्लाह की मर्जी थी, तो तू अल्लाह की मर्जी बोल के छोड़ना था, आया कई को? तू भी अल्लाह की मर्जी बोल के छोड़ देना था, आया कई को? तो बताने का मकसद यह है कि विलायत की कोई निशानी मुकर्रर नहीं है, कोई निशानी विलायत की मुकर्रर नहीं है। कई वक्त के ऐसे ऐसे बड़े बड़े औलिया गुजरे हैं जो पूरी जिंदगी हाईवे के फुटपाथ पर बैठकर निजाम हुकूमत संभाल रहे हैं, और उनका पावर और उनकी ताकत ऐसी होती है कि जब तक वो उस जमीन पर बैठे रहेंगे वहां के मामला सुधरे हुए रहेंगे, और एक लम्हे के लिए भी उड़ जाए तो फिर उस इलाके का निजाम दरहम व बरहम हो जाता है, सारा निजाम दरहम व बरहम हो जाता है। तो याद रखो, कई फकीरों में, इलाकों में कई फकीर ऐसे होते हैं कि उन फकीरों का खुदा से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। हदीस शरीफ है कि महशर का मैदान होगा, हर कोई अपने रब के सामने बैठकर हिसाब व किताब देगा। तो एक बंदा अल्लाह की बारगाह में आएगा महशर में हिसाब किताब के लिए, तो रब उसे पूछेगा, क्या है मेरे बंदे, एक दिन मैं प्यासा था। इस जुमले को गौर कीजिए, अल्लाह पूछेगा, क्या है मेरे बंदे, एक दिन मैं प्यासा था, मुझे प्यास बहुत लगी थी, पानी के लिए तेरी चौखट पे आकर मैं ठहर गया था, और तू मुझे पानी नहीं दिया, हिकारत से भगा दिया। दूसरे बंदे से कहेगा अल्लाह कि मैं बीमार था और तू देखते निकल गए, मेरी बीमार कुर्सी को नहीं आया। तो बंदे कहेंगे कि अल्लाह तू तो समद है, बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, तेरी सिफत है, तेरी सिफत है, सारी कायनात तुझसे है, तू बेआयब है, तू बेआयब है। तो बिराए अल्लाह, ये प्यास तो दुनिया के बंदों को लगती है, भूख दुनिया वालों को लगती है, इंसानों को लगती है, तू तो खुदा है, समद है, बेआयब है, तो अल्लाह तुझे प्यास कैसे लगी, तू कब बीमार हुआ? तो रब कहेगा कि मेरे बंदे जरा दुनिया में जा और तेरी जिंदगी को गौर कर कि एक फकीर तेरी चौखट पे आया था, एक फकीर तेरी चौखट पे आया था, एक दीवाना तेरी चौखट पे आया था, और एक गिलास पानी वो दीवाना तुझसे पूछा था। तो रब कहेगा कि अगर उस वक्त तू उसे एक घूंट पानी दे लेता तो तू फकीर के दुआ में मुझे उसी वक्त उस चौखट पे पा लेता, उसी वक्त पा लेता। एक फकीर बीमार हुआ था, वो तड़पता रहा, और तू मिजाज कुर्सी को नहीं गया, अगर तू उसकी मिजाज कुर्सी को जाता तो तू उसी मुकाम पे मेरी रजा को पा लेता। तो दुनिया में ऐसे बंदे हैं जिन्हें हम दीवाने समझते हैं, जिन्हें हम पागल समझते हैं, जिन्हें हम पता नहीं क्या क्या समझते हैं, मगर वो इस दुनिया में जज्ब की इतनी बुलंद कैफियत में रहते हैं, जज्ब के इतने अजीम कैफियत में रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी जुबान को तकते रहता है कि कब मेरा बंदा क्या कहे और मैं उसको देता चला जाऊं, देता चला जाऊं। तो अलगर्द के हजरात मोहतरम कि आज सरकार सैयदना सैयद मर्दान अली शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह का अजीमुशान 100 साला उर्स शरीफ की आज पहली तकरीब है, और आज हमने मज़ार मुबारक के गुस्ल के जरिए, मज़ार मुबारक के गुस्ल के जरिए आज हमने पहली महफिल का आगाज किया है। तो अब हम थोड़ा ये समझेंगे कि ये उर्स क्या है, ये गुस्ल क्या है, इसके बाद महफिल का आगाज हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि उर्स कहते किसे हैं, और हर एक का उर्स नहीं होता, यह भी बड़ी अच्छी बात है, हर एक का उर्स नहीं होता। महबूब नगर में 150 साल पुराना कब्रिस्तान है ना, शाह साहब गुट्टे का ये जो कब्रिस्तान है ना, हजरत की जाती मिल्कियत है, जिस दिन से हजरत ने वक्फ किया उस वक्त से है, और कई कई लोग उसमें दफन है। और आप जिला महबूब नगर में तेलंगाना में जाओ, तेलंगाना में देखो तो तेलंगाना के कुछ इलाकों में 400 साल पुराना कब्रिस्तान भी मिलेगा, 500 साल पुराना कब्रिस्तान भी मिलेगा। मगर जनाब हर कब्रिस्तान में उर्स क्यों नहीं होता?
हर कब्रिस्तान में उर्स क्यों नहीं होता? बड़ा सोचने वाली बात है। क्यों? इसलिए कि जिनका उर्स हो रहा है वो भी मुसलमान है और दूसरे लोग जो खबर में दफन है वो भी मुसलमान, वो भी नमाज पढ़ने वाले, ये भी नमाज पढ़ने वाले, इनको भी वही कफन पहनाया गया, इनको भी वही कफन पहनाया गया, इनको भी उसी डोले में उठाया गया और सारे खबर वालों को उसी डोले में उठाया गया और इनकी भी नमाज जनाजा पढ़ने वाला मस्जिद का इमाम, सारों की जनाजा पढ़ने वाला मस्जिद का इमाम। तो हर कब्रिस्तान की खबर का उर्स नहीं होता, मगर उर्स एक खास शख्सियत का होता है। वो क्यों? तो और एक जुमला दे रहा हूं, देखिए क्या कि कब्रिस्तान में जितने लोग दफन होते हैं उनके मदफन को मजार नहीं बोलते, खबर बोलते। हर मदफन को मजार नहीं बोलते, खबर बोलते। मेरे बाबा की खबर, मेरे दादा की खबर, मेरे ताया की खबर, मेरे सास की खबर, मेरे ससुरे की खबर। मगर यहां हजरत मर्दान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास आओ तो हजरत की मजार। तो अब तक खबर खबर बोल लेते आए और यहां आने के बाद मजार बोल रहे। आखिर ये खबर और मजार में फर्क क्या है? गड़ा भी वही है, जमीन भी वही है, कफन भी वही है, डोला भी वही है, जनाजे की मस्जिद भी वही है, मुसलमान भी वही है, इमाम भी वही है, दुआ भी वही है, कोई चीज का फर्क नहीं आया। मगर जमीन के ऊपर वालों में बोली की खबर आई कि जब कब्रिस्तान जाओ तो खबर कहते हैं, यहां आओ तो मजार कहते हैं। तो ये खबर और मजार में फर्क क्या है? तो मेरे जुमले में मैं समझाता हूं, सुनो। खबर कहते किसे मालूम है? जो अंदर जाकर बेखबर रहता है उसकी खबर होती है। जो अंदर जाकर बेखबर रहता है उसकी खबर रहती है और जो अंदर रहकर बाखबर होता है उसकी मजार होती है, उसकी मजार होती है। और मुर्दों का नहीं, होश वालों का होता है। मुर्दों का नहीं, होश वाले का होता है। तो कब्रिस्तान में मोहताज जिंदों के होते हैं और मजारों में जिंदे इन लोगों के होते हैं मोहताज। जो कब्रिस्तान में कौन रहते हैं? जो गड़े में रहकर अपने खानदान वालों के फूल का इंतजार करे उसको खबर कहते हैं। जो गड़े में रहकर अपने खानदान, अपने दोस्त व अहबाब के फूल और इसाले सवाब का इंतजार करे उसे खबर कहते हैं। और जो जमीन में रहकर जिसकी मजार का फूल जिंदा खाए उसे मजार कहते हैं, उसे मजार कहते हैं। तो फिर देखिए जनाब कि ये उर्स है। और एक चीज है, अब मिसाल के तौर पे 22 रजब को कई लोगों का विसाल हुआ, कई लोगों का 22 रजब को विसाल हुआ। महबूब नगर में जिस दिन सरकार मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ होगा ना, इतने बड़े इलाके में शायद हो सकता है सुबह से शाम तक 4-5 लोगों का इंतकाल हुआ होगा। मगर 22 रजब को सरकार मर्दान अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के तारीख में जितने लोगों का विसाल हुआ अभी उनका उर्स क्यों नहीं हो रहा? अब 22 रजब को जो भी मर गया उसकी दावत घर पे जाती, क्या जाती? बाबा की बरसी है, कोसी भी तारीख को हो जाओ, 1 साल होने के बाद दावत जाती, चिच्चा की बरसी है, खालू की बरसी है, उनकी बरसी है, इनकी बरसी है जाती। मगर साल में एक बार पोस्टर आता उर्से मर्दा, उर्से गरीब नवाज, उर्से बंदा नवाज, उर्से रूहे अहले सुन्नत, उर्से शहबाज़े दक्कन, उर्से यूसुफैन, उर्से अहमद बादेपा। तो उनका अगर कोई इंसान मर जाए, मुसलमान मर जाए, तो उसके साल में एक बार के फातिहा को बरसी कहते हैं और वली के इंतकाल के दिन को उर्स कहते हैं। आखिर फर्क क्या है बरसी में और उर्स में? तो बरसी में और उर्स में जमीन और आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। और वो फर्क क्या है मैं आपको बतलाता हूं, सुनिए, बड़ी अच्छी बात बता रहा हूं। वो फर्क क्या है उर्स में और बरसी में? बड़ी अच्छी बात देखो।
ये अरबी लफ्ज है। ऊपर जाओ तो अरूस और अरूसा, जिसके माने होते हैं दुल्हन के। क्या होते हैं? दुल्हन के। और महफिल उर्स के माने क्या होते हैं? शादी के महफिल के। महफिल उर्स के माने होते हैं शादमानी की महफिल। महफिल उर्स के माने होते हैं खुशी की महफिल। महफिल उर्स के माने होते हैं खुशी की महफिल। और फिर उर्स से अगर आयन निकाल दिया जाए तो रास यानी बुलंदी की महफिल, ऊपर वालों की महफिल, सर की महफिल, बुलंदी की महफिल। तो ये उर्स कहा क्यों गया है? तो सुनिए, बड़ी आसानी से बात को मैं आपको समझाता हूं कि जब हर किसी का इंतकाल हो जाता है ना, हर किसी का, तो उसकी रूह उसके अमल के हिसाब से निकलती है। इंसान की जो रूह होती है ना, उसके अमल के हिसाब से निकलती है। जैसा अमल वैसी रूह। इस वास्ते बड़े लोगों की जो मिसालें थे ना पुराने जमाने में, वो बड़े लोगों की मिसालों में बड़ा दर्स रहता था। जैसे कि एक मिसाल हम हमारे बचपन में सुनते थे, बड़े बड़े बुढ़िया बोलते थे, जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसी रूह वैसे फरिश्ते। ज़ईफ लोग कहते थे तो हमारे को आज जाके समझ में आया कि वो कैकू बोलते थे। मतलब ये था कि तुम अमल जैसा रखोगे, मौत का फरिश्ता वो सूरत में तुम्हारे पास आएगा, वो सूरत में तुम्हारे पास आएगा। तो चुनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के नबी हैं हजरत इब्राहिम। मलकुल मौत से हजरत इब्राहिम का बड़ा अच्छा दोस्ताना था, खास लगाव था, आना जाना था मलकुल मौत से हजरत इब्राहिम का। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक दिन मलकुल मौत से बोले, मौत के फरिश्ते से बोले, क्या फरिश्ते सुनो, बात यह है कि तुम्हारा मेरी गहरा दोस्ताना है, तुम्हारा मेरा गहरा ताल्लुक है। तो मौत कब किसकी आएगी नहीं मालूम, मगर चूंकि तुम्हारा मेरा दोस्ताना अच्छा है, तो जब मेरा टाइम आ जाए तो टाइम आने से पहले मेरे बोलना, अचानक नहीं आना। तो मलकुल मौत ने वादा किया कि हुजूर, मैं आपके पास अचानक नहीं आऊंगा, बल्कि आने से पहले मैं आपके पास मेरे 3 दोस्तों को भेजूंगा, और वो मेरे 3 दोस्त आपको बता देंगे कि मैं आपके पास आने वाला हूं। वो 3 दोस्त आपको बता देंगे कि मैं आपके पास आने वाला हूं। तो मलकुल मौत ने वादा किया, हजरत इब्राहिम बड़े सुकून में आ गए। तो कुछ दिनों के बाद मलकुल मौत आ गए। जब मलकुल मौत कुछ दिनों के बाद आ गए तो हजरत इब्राहिम ने पूछा कि बताओ आना कैसे हुआ। तो मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मैं अब हमेशा की तरह मिलने नहीं आया हूं, बल्कि आपकी रूह को लेने आया हूं। आपका टाइम आ गया, आपको लेने आया हूं, आपका टाइम आ गया है। तो मेरे दोस्तों जरा देखिए कि हजरत इब्राहिम ने कहा कि तुमने जो वादा किया था वो कहां गया, कि तुमने वादा किया था कि मेरी रूह निकालने से पहले तुम 3 दोस्तों को भेजोगे, और मैंने कहा था कि तुम्हारे 3 दोस्तों से मिलकर मैं तैयारी अच्छी कर लूंगा, तब जाके मेरी रूह को निकालना। तो मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, बात यह है कि मैंने जो वादा किया है उसको पूरा कर दिया है। वो मेरे 3 दोस्त आकर बहुत दिन हो चुका है, मगर आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं। मैं तो वादे के मुताबिक 3 दोस्तों को भेज दिया, आप नहीं समझे तो मैं क्या करूं। तो हजरत इब्राहिम ने कहा कि तुम्हारे 3 दोस्त मेरे पास आ गए हैं। कहां है? मुझे तो मिले ही नहीं। कहा कि हजरत, आपसे मिल चुके हैं और अभी आपके पास है मेरे 3 दोस्त। बोला कहां है? तो मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मेरा पहला दोस्त बालों का सफेद होना, मेरा पहला दोस्त बालों का सफेद होना जो आपके पास आ चुका है। मेरा दूसरा दोस्त जिस्म का ढीला पड़ना, वो आपके पास आ चुका है। मेरा तीसरा दोस्त कमर का झुक जाना, वो आपके पास आ चुका है। तो ये 3 चीजें अगर किसी के पास जमा हो जाए तो मैं कभी भी उसके पास आ सकता हूं, कभी भी उसके पास मैं आ सकता हूं। और ये 3 चीजें आपके पास आ चुके हैं। तब आप हजरात सुकून से बैठिए। हमारे मेहमान खुसूसी बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नाजिम सैयद मौलाना सैयद शागिर इमाम, जो शाज़ उर्फी से आप बड़े मशहूर हैं।